سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جاگ کر سنیں. مجھے معلوم ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے لیکن آپ جاگ کر سنیں. کتنے لوگ جاگے ذرا ہاتھ اٹھائیں. سب جاگے. ایک مرتبہ زور سے سبحان اللہ بولے. اور یاد رکھیں پورے بیان کے اندر اگر کوئی بات اچھی لگتی ہے تو سبحان اللہ کہہ دیا کرے. ہم کو بھی احساس ہو اتنی اچھی نعت پڑھی گئی, اتنی اچھی بچوں نے تقریریں کی, لیکن آپ لوگوں نے آواز تک نہیں نکالی. اتنی خاموشی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے. تھوڑا ہمت افزائی کے لیے چند جملے آپ بولا کریں. ویسے میرے جو بھی بات ہوگا, بیان ہوگا, جو بھی ہوگا, آپ کو کوئی بھی بات اچھی لگتی ہے یا کوئی شعر اچھا لگتا ہے تو آپ سبحان اللہ ضرور کہیں گے. بچے نہیں کہیں گے. اور آئندہ جلسے میں مشورہ دینا چاہوں گا مفتی صاحب کو بھی, مسجد کے ذمہ داروں کو بھی اور بیٹھن والوں کو بھی, کہ جلسے کو اصل جو شوق اور ذوق سے دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے آتی ہیں ہماری ماں بہنیں آتی, آخر تک بیٹھتی ہے, لیکن انہی کو پردے میں ڈال دیا جاتا ہے اور ان کو اسٹیج نظر ہی نہیں آتا. تو اگلی بار کم سے کم اسکرین لگا دیا کرے تاکہ ان کو ان کے بچے نظر آئے, ان کے پروگرام نظر آئے اور وہ دیکھیں, ہے نا. اتنا تو کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ بیچارے سب سے زیادہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں. مکتب میں بچوں کو چھوڑنا, لے کر جانا, باپ تو خالی داخلے کے لیے آتا ہے نا, اور آخری میں ایک بار جلسے کے لیے آتا ہے, لیکن بچے کو تیار کرنا, اس کا بستہ تیار کرنا, اس کو انجمن چھوڑنا, لے کر جانا, اس کی ہر چیز ماں دیکھتی ہے. اور ماں کو ہی بڑا شوق ہوتا ہے بچوں کے جلسے کو دیکھنے کا, اور انہیں کو دیکھنے کو نہیں ملتا. تو اگلی بار رکھیں گے آپ اسکرین. ہاں چلیے ماشاءاللہ. اب آپ خاموش نہیں سنیں گے, آپ ہمارے ساتھ. آپ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ سننے کا حق ادا کرو, ہم بولنے کا حق ادا کریں گے. مجھے ابھی پوچھ رہے تھے حافظ صاحب, حافظ بشیر صاحب کتنی دیر آپ بات کریں گے, تو میں نے کہا کہ لوگ مجھے شارٹ کٹ بات کرنے سے ہی یاد کرتے ہیں کہ آپ کم وقت میں بڑی بات کہہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا میری کیپیسٹی 5 منٹ ہے, لیکن لوگ اگر رسپانس دیں, لوگ اگر شوق سے سنیں تو میں فجر تک بھی لے کر بیٹھ سکتا ہوں. کتنے لوگ فجر تک بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے انشاءاللہ کہیں. لیکن میں ایسا کروں گا نہیں. تو آپ لوگ بولیں گے مولانا سیریسلی لیے, ہے نا. وقت نہیں لوں گا, آپ اگر اچھا سنیں گے تو ہم اچھا سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ. چلیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں 4 لائنیں کہہ کر میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ رتبہ بھی میرے سر کو اسی در سے ملا, رتبہ بھی میرے سر کو اسی در سے ملا, حالانکہ یہ سر بھی مجھے اسی در سے ملا. لوگوں کو جو ملا وہ مقدر سے ملا, لوگوں کو جو ملا وہ مقدر سے ملا, اور مجھے مقدر بھی اسی در سے ملا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ 2 لائنیں کہہ کر میں یہ 2 لائنیں جب کہوں گا تو آپ درود شریف ضرور پڑھنا بلند آواز سے. ہر ابتدا سے پہلے, ہر انتہا کے بعد, ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے بھی لوگ, دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے بھی لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. کیا خوب ہے نام محمد جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. ان کی محبت سے جو منہ موڑے دونوں جہاں میں اس کا گزارا نہیں. دامن مصطفیٰ کو ہم چھوڑ دے اتنا کمزور ہمارا ایمان نہیں. اللہ نے خود نبی سے کہہ دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. ماشاءاللہ.
पैठन में आपको पता है मैं तकरीबन 30 साल के बाद आया हूं। मैं जब 16-17 साल का था तो मैं यहां पर आया था और डैम देखकर वापस चला गया था। पैठन में मुझे डैम के अलावा तो कुछ और वो गार्डन था वो देखकर वापस चला गया था। उसके बाद कई बार मैंने सोचा लेकिन पैठन आना नहीं हुआ। आज माशाल्लाह मुफ्ती साहब के दावत पर मुफ्ती जमीर साहब का यानी उन्होंने दावत दी और उन्होंने बुलाया। आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। देखिए आपका शौक और ज़ौक़ देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। अल्लाह जो है ना, जब किसी बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं मैं, बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। 3 साल पहले कोई जानता भी नहीं था। अगर मैं यहाँ आके 4 चक्कर लगा के भी जाता ना तो किसी को पता नहीं चलता। लेकिन अल्लाह ने इतना करम किया कि इस गुनहगार की मोहब्बत आप लोगों के दिलों में डाल दी। आप मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत से आप सुनते हैं, चाहे यहां भी हो वहां भी हो, है ना। और सच बताऊं, बहुत सारे लोगों ने मेरा नाम मोटिवेशनल स्पीकर रख दिया और कोई इस्लामी स्कॉलर बोलता है। स्कॉलर किसी को बोलने भी नहीं आता, कोई खाली कॉलर बोल देता है। अभी आपके सामने इस्लामी कॉलर मौलाना अब्दुल रशीद आएंगे और बयान करेंगे। तो ये नाम अलग अलग आप लोगों ने मोहब्बत से दे दिए, हालांकि मैं मुकर्रिर भी नहीं हूं, है ना। ये मुकर्रिर यहाँ ये उलमा इकराम बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे बच्चे आपके सामने बयान करके गए ना, ऐसे ही मैं बयान कर रहा हूं। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप आज के जमाने में खास तौर से रिश्तों की कदर दिन ब दिन कम होती जा रही है। रिश्तों की कदर दिन ब दिन कम होती जा रही है। अभी काजी साहब से मुलाकात हुई, काजी शहर आपके यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी खाते वक्त बातचीत हुई और यानी मेरे सामने भी जहां मैं रहता हूं और मेरे पास भी बहुत सारी फैमिली मैटर्स आते रहते हैं। पहले ऐसा होता था ना कि तलाक का जो मसला था वो ऐसा रेयर यानी बहुत कम से कम ऐसा सुनने को मिलता था कि किसी का झगड़ा हो रहा है और बात तलाक तक आ गई है। लेकिन कमाल की बात हो गई आजकल के जमाने में, 6-6 महीने में, 3-3 महीने में तलाक के लिए बैठकें बैठ रही है। बहुत अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात। रिश्ते इतने कमजोर हो गए, रिश्ते की जो डोर है वो इतनी कमजोर हो गई है। अभी एक 3-4 महीने पहले की बात है, एक शौहर ने अपनी बीवी को तलाक क्यों दिया पता है? तलाक क्यों दिया मालूम? उसकी बीवी को सिर्फ मैगी बनाते आती थी, मैगी के अलावा कुछ नहीं आता था, उस पर तलाक हो गई। अरे बाबा सिखा देता कुछ और, महीना 2 महीने क्लास लगा देता, ठीक था, लेकिन तलाक। एक ने 1.5 साल पहले सिर्फ घर में आया और किचन में वॉश बेसिन होता है ना, उसके अंदर झूठे बर्तन देखा, उसको गुस्सा आ गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, तलाक दे दिया। यानी वो पहले सुनते थे ना कि सालन में नमक कम है तो तलाक दे दिया, मिर्ची ज्यादा होगी तो तलाक दी। अब खाने तक बात ही नहीं आ रही, दूर दूर से ही तलाक दे रहे। हद हो गई। तलाक मतलब क्या है, कितना बुरा मामला हो गया। ये जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई है, इनसे पूछो इन्होंने रिश्तों को कैसे संभाला, कैसे रिश्तों को संभाला है। संभाल के लेते थे, समेट के लेते थे, कुर्बानियां देते थे। मस्तूरात में भी हमारी जो बुजुर्ग खवातीन हैं, जो बूढ़ी औरतें हैं, उनसे पूछो कि वो रिश्तों को कितना संभालते थे, उसके लिए कुर्बानियां देते थे, सैक्रिफाइस करते थे कि नहीं रिश्ता बचना चाहिए। ये रिश्ता चाहे मियां बीवी का हो, बहन भाई का हो, पड़ोसी का हो, रिश्ते खत्म नहीं होने देते थे। पहले लोग भोले भाले थे, रिश्तों को संभालते थे, फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, रिश्तों से फायदा उठाने लगे, रिश्तों से फायदा उठाने लगे। और अब तो 2023 चल रहा है, लोग प्रोफेशनल हो गए, अब जहां फायदा होता है वहां रिश्ता करते हैं।
पहले लोग भोले भाले थे, मिट्टी के बर्तन पे खाते थे, मिट्टी के बर्तन में खाते थे, तो रिश्तों को जमीन से जुड़कर निभाते थे। फिर पत्तों पर खाने लगे, फिर मेहमान को देखकर हरे होने लगे, खुश होने लगे, फिर पीतल के बर्तन में खाने लगे, फिर रिश्तों को साल 6 महीने चमकाने लगे, फिर कांच के बर्तन में खाने लगे, फिर साल 6 महीने में जरा जरा सी बात पर रिश्तों को तोड़ने लगे। अब तो यूज एंड थ्रो में खाने लगे, अब रिश्तों को भी यूज एंड थ्रो करने लगे। इस्तेमाल किया, खत्म। सारी कचरिया और सारी कोर्ट रिश्तेदारों से भरी पड़ी है। आप देखिए जाकर, इतने झगड़े, भाई भाई के झगड़े, मियां बीवी के झगड़े, खेतों के झगड़े, प्रॉपर्टी के झगड़े, कारोबार के झगड़े, है ना, इतने मसाइल, रिश्ते। एक बात आप याद रखो, एक किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर गिर जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। अरे 10 रुपए की नोट गिर गई तो आदमी उसके लिए झुक जाता है, लेकिन रिश्ते बचाने के लिए कभी नहीं झुकता, थोड़ा सा भी नहीं। माफ करना तो, माफी मांगना तो ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ उसको लाना है या पूरा पहाड़ तोड़ना है। माफ नहीं करूंगा मैं, और कौन माफी मांगेगा? क्या तकब्बुर आ गया है, काहे का? अरे फटीचर सब फटीचर आदमी, उसके अंदर भी तकब्बुर। अरे मालदार को तकब्बुर आ गया, समझ में आता है, चलो माल तो है। अरे फकीर को भी तकब्बुर आ गया, घर में खाने को नहीं है, हाँ, उसको तकब्बुर है। काहे का तकब्बुर? किस बात का घमंड? घमंड करने को कुछ भी नहीं। 10 रुपए की नोट के लिए इंसान झुक जाता है, लेकिन रिश्ते बचाने के लिए नहीं झुकता। हमारा सबसे बड़ा मसला और सबसे ज्यादा केसेस और सबसे ज्यादा रिश्तों को तोड़ना और रिश्तों की वैल्यू नहीं, कुछ भी नहीं, इसकी वजह से पुलिस स्टेशन, कचहरी, कोर्ट भरे पड़े हैं। आप सिर्फ एक काम करो, मैं आपको बताता हूं, देखो कभी झगड़ा ही नहीं होगा, अगर होगा भी यूं सुलझ जाएगा। एक काम आपको करना है, मैं अपनी हर वीडियो में अक्सर जगह पर मैं ये कहता रहता हूं, एक काम, नौजवान भी खास तौर से और घर में भी सब, जहां माफी मांगने की नौबत आ जाए, मस्तूरात से भी कह रहा हूं, जहां माफी मांगने की नौबत आ जाए वहां माफी मांग लो, और जहां माफ करने की कंडीशन में तुम हो वहां माफ कर दो। देखो आपके झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, गालिब का एक शेर भी है कि मैंने जिंदगी को यूं आसा कर दिया, मैंने जिंदगी को यूं आसा कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। ये जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी को हल्का फुल्का रखो, यूं जाना है। पिछले शबे बारात को कितने लोग हमारे साथ थे, आज कब्रों में चले गए, हमारे साथ नहीं है, क्या लेकर गए? अगली शबे बारात में हम भी नहीं रहेंगे, हो सकता है, पॉसिबल है, हम में से कितने लोग कब्रों में चले जाएंगे। अरे माफ कर दो, माफी मांग लो। जिंदगी बहुत हल्की फुल्की है, बोझ तो ख्वाहिशों का है। ख्वाहिश आप जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे, अपनी ख्वाहिशें जितनी ज्यादा आप बढ़ाएंगे, उतनी जिंदगी आपको बोझ लगेगी, उतनी जिंदगी आपको बोझ लगेगी। आप देखो ना, क्या आपको कमी है? कुछ भी कमी नहीं है आपको, लेकिन हर एक लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। किसी को भी पूछ लो, मालदार को पूछो तो वो भी परेशान है, गरीब को पूछो तो वो भी परेशान है, मौलवी को पूछो तो वो भी परेशान है, या किसी और को, यानी सब परेशान है। क्यों? इतनी ख्वाहिशें, इतनी उम्मीदें लगा के रखी है दुनिया से कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। जिंदगी को बोझ बना के रख दिया, इतना इतना बोझ के अभी यानी चलना मुश्किल हो गया। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। इतना मतलब जो नहीं हो सकता वो भी बना के रख दिया प्लान। एक घर है तो उसको 2 बनाना है, 2 घर है तो 4 बनाना है,
उससे क्या होता है, बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन प्लान होना चाहिए, सुपर प्लान होना चाहिए, अच्छे अजाइम होना चाहिए, लेकिन जिंदगी को मुश्किल बना के नहीं। उससे होता यह है कि जो हमारे पास है उसकी नाशुक्री शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती, बोलो, नाशुक्री। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं, गौर से सुनो। एक बादशाह था, वो बादशाह जो है ना बड़ा परेशान रहता था, बहुत परेशान रहता था। तो और वो अपनी रियाया को देखता था, जनता को देखता था, तो वो खुश थी। हालांकि गरीब थी जनता, अवाम गरीब थी, लेकिन वो खुश थी। और बादशाह जिसके पास महल है, रानियां हैं, खजाना है, सोने चांदी हीरे मोती सब है, वो परेशान है। तो उसने एक दिन वजीर को बुलाया और कहने लगा, यार मेरे समझ में नहीं आता, मैं बादशाह हूं लेकिन परेशान हूं, जनता गरीब है लेकिन खुश है, ये क्या माजरा है, ये क्या मसला है, वो सुकून से हम बेसुकून, ये क्या मतलब है। एक बात आप याद रखो, देखो, माल और दौलत ये एक अलग चीज है और सुकून ये अलग चीज है। बात समझ में आ रही क्या? आम जबान है ना, आपके उलमा की जैसे मेरा शीन काफ नहीं है इतना अच्छा, लेकिन आपको समझ आ रही है तो बोलो जोर से, समझ में आ रही है? हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। इससे दो बातें पता चलती, तो समझ भी आ रही है और आप जाग भी रहे। वरना बहुत सारे लोगों की सिर्फ आंखें खुली रहती है और वो इतने हुनरबाज रहते हैं कि आंखें खोलकर भी सोते हैं, है ना। बाजू वाले को लगता है कि वो जाग रहे हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं होते, वो चौथे आसमान पे रहते हैं। हाँ, या तो फिर कुछ हिसाब किताब कर रहे होते, वो दिखते यहाँ पर है लेकिन सब चलता है उनका। हमारे अब्बा अक्सर ये वो लतीफा कहा करते थे कि एक इमाम साहब की जो है वो कंफ्यूजन हो गया कि 3 रकात हुई कि 4 रकात हुई, सलाम फेर दी उन्होंने। अभी लोगों में सब चल रही बात कि भाई 3 हुई, कोई बोलता 3 हुई, कोई बोलता 4 हुई, कोई बोलता 4 हुई, कोई बोलता 3 हुई। एक सेठ साहब थे, उन्होंने उठकर कॉन्फिडेंस से चिल्लाकर बोले कि 3 रकात हुई इमाम साहब, दोहरा लो। तो लोग भी हैरान हो गए, इतना कॉन्फिडेंस, सब कंफ्यूज, और तुमको कॉन्फिडेंस 3 हुई, तुम कॉन्फिडेंस इतने भरोसे से कैसे बोल रहे हैं कि 3 हुए। तो वो कहने लगे, सेठ साहब देखो, मेरी 4 दुकान है और मैं हर रकात में हर दुकान का हिसाब करता, और आज 3 ही दुकान का हिसाब हुआ, चौथी बाकी रह गई। इसका मतलब यह है कि 3 ही रकात हुई। तो बहुत सारे लोग जागे रहते हैं लेकिन दिमाग उनका कहीं और घूमता रहता है ना। सुकून एक अलग चीज है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि माल आएगा, पैसा आएगा तो सुकून आएगा। भाइयों, सुकून अलग चीज है। देखो, अंबानी, अडानी और दुनिया के मिलीनियर, बिलीनियर, करोड़पति, अरबपति, वो कोई उन्होंने कमाना बंद कर दिया था? नहीं, उनको और कमाना है, उनको और कमाना है। पैसा आता है ना तो पैसा और भूख बढ़ाता है। सुकून अलग चीज है। अल्लाह से जब भी मांगो सुकून मांगो। क्या मांगो? सुकून मांगो, क्योंकि सुकून, आदमी पैसा कमाता काय के लिए है? काय के लिए कमाता है? सुकून के लिए। सुकून से रहो, आराम से रहो, है ना। लेकिन सुकून अलग चीज है। एक साहूकार थे, बोले वो किस्सा बाकी रहेगा, मुझे याद दिला देंगे? आप लोग याद दिलाएंगे ना मैं क्या बोल रहा था? मेरा जरा मेमोरी कार्ड छोटा है, इसमें ज्यादा डेटा बैठता नहीं। तो क्या बोल रहा था? हाँ, एक साहूकार रोजाना घोड़े पर आते जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। उनकी दुकान थी दूसरे गांव में, घर से निकलते थे, जाके कारोबार वगैरह करते थे। उनकी दुकानें थी, जो भी था उनका मार्केट में। लेकिन वो घोड़े पे आते जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव। कैसे आते थे बोलो? घोड़े पे आते थे। लेकिन वो रास्ते में रोजाना देखते थे कि एक नौजवान ऐसे दरख्त पर ऐसे टेक लगा के, टांग पे टांग डाल के ऐसे 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 बैठा रहता था। रोजाना देखते थे, आते जाते। वो कोई फल का दरख्त था और पानी की एक नहर बहती थी, वो फल खाता था और पानी पीता था। तो वो जो है ना, साहूकार रोजाना उसको देखते थे। एक दिन सोचने लगे
यार जिंदगी तो मैं भी जी रहा हूं, जिंदगी तो मैं भी जी रहा हूं, और ये जो बैठा हुआ है ये भी जिंदगी जी रहा है, लेकिन मैं कितनी भाग दौड़ कर रहा हूं, रोजाना जाना आना, माल खरीदना बेचना, उधार लेना देना, टेंशन, ये रात में थक जाता हूं, कब सोता हूं पता नहीं चलता, सुबह उठने का टेंशन, और इतना मेरे पीछे गड़बड़। मैं भी जिंदगी जी रहा हूं और ये भी जिंदगी जी रहा है, हद हो गई। इसका मतलब ये आयदी है। क्या है ये? आयदी, आलसी, लेजी, सुस्ताड़। इसको कुछ तो भी कारोबार के लिए पैसे देने चाहिए। तो वो सेठ साहब एक दिन घोड़े से उतरे और उसके पास गए और उसको बोले कि ये लो एक थैली पैसों की और जाओ काम धंधे करो, रोजाना मैं तुमको देखता यही पड़े रहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, जाओ जल्दी से ये पैसों से एक छोटी सी दुकान खोल दो। क्या खोल दो? दुकान खोल दो। तो नौजवान बोलने लगा कि दुकान खोलना है मुझे। बोले हाँ दुकान खोलना है। तो बोले दुकान खोल दूंगा मैं जाके, उसके बाद क्या करूं मैं? उसके बाद बोलो ना क्या करूं? अरे बोले अजीब आदमी है, तुझे पैसे दे रहा हूं, तुझे मैं भांडोल दे रहा हूं, जाके दुकान खोल दे, पैसे से पैसा आएगा। ये जो आज एक पोटली तुझे पैसा दिया है, कल को 4 पोटली हो जाएगी, है ना? जाकर। तो वो नौजवान कहने लगा कि बोले साहूकार साहब चलो फर्ज कर लो कि आपने 1 पोटली दी, उसकी 2 हो गई, 2 की 4 हो गई, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? बोले अजीब आदमी है, मैं मदद कर रहा हूं, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? अरे बाबा तेरे पास जो है 4 पोटली हो जाएंगी तो तू दुकान की 4 दुकान कर, 4 दुकान की 8 दुकान कर, अलग अलग जगह पे ब्रांच खोल। बोले मान लो मैंने अलग अलग ब्रांच खोल लिए, 4 दुकान की 8 दुकान हो गई, उसके बाद क्या? बोले यार कमाल है, आदमी की मदद करो। और अरे भाई 4 दुकान हो जाएगी, 8 दुकान हो जाएंगी, वो बंद करो, एक छोटी सी कंपनी खोल दो, 10-20 नौकर काम पर रख दो, है ना? 10-20 नौकर काम पे रख दो, पैसे और आएंगे भरपूर, तुम्हारे पास लाखों रुपए आने शुरू हो जाएंगे। तो बोले चलो मैंने कंपनी खोल दी छोटी सी, 10 लोग भी रख दिए, मेरे पास लाखों रुपए भी आना शुरू हो गए, उसके बाद क्या? बोले अजीब आदमी है भाई, छोटी कंपनी है, लाखों रुपए आएंगे, बड़ी कंपनी खोल दे, वहां पर और नौकर चाकर रख काम पर, लाखों करोड़ों रुपए आ जाएंगे। तो बोले ठीक है, मैंने एक बड़ी कंपनी खोल दी, लाखों करोड़ों भी आ गए, उसके बाद क्या? बोले तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाएंगे, उसके बाद सुकून से जिंदगी जियो। तो बोले मैं अभी क्या कर रहा था? अभी भी सुकून से ही थे ना, इतना लॉन्ग कट मार के काई को आने का? हमको अल्लाह ने यही सुकून दे दिया है ना, तुमको जो है तुमको ऐसे दिया। आदमी जो है ना जब कबूतर को दाना डालता है तो 2 तरीके से डालता है, एक तो कटोरे में डालता है, सब कबूतर आके वहां से दाना चुगते हैं, और कुछ लोग ऐसे फेंक के देते हैं, चारों तरफ फैला के देते हैं, तो कबूतरों को जा के दाना चुगना पड़ता है। तो जिन लोगों को अल्लाह ने अपने गांव के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, अपने शहर के अंदर रोजी दी है, उनको कटोरे में डाल के दी है। खुशकिस्मत लोग हैं, रोजाना अपने बीवी बच्चों के साथ खा पी रहे हैं, माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, अपने गांव में रह रहे हैं। और कुछ लोगों को रोजी अल्लाह ने ऐसे फैला के दे दी है, तो कोई दुबई जा रहा है, कोई मस्कत जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, वहां उनकी रोजी पड़ी है, वो लेकर आ रहा है। तो जिनको अल्लाह ने यहाँ रोजी दे दिया वो किस्मत वाले लोग हैं, वरना सब छोड़ छाड़ के दूर जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बहरहाल मैं ही समझा रहा था, सुकून अलग चीज है। और वो मैं किस्सा सुना रहा था आपको कि वो बादशाह बड़ा मतलब दुखी रहता था और जनता बड़ी खुश रहती थी। तो वजीर को बुलाया, यार बोले मैं परेशान हूं और जनता खुश है, ये क्या माजरा है? बोले एक आइडिया करता हूं मैं। बादशाह ने, वजीर ने क्या कहा बादशाह को, एक मैं आइडिया करता हूं, मैं इनके ऊपर कल फार्मूला 99 यूज करूंगा। क्या करूंगा? फार्मूला 99, 9 पे 9। बादशाह बोले ये क्या होता है? बोले वो कल पता चलेगा। वजीर ने क्या किया कि जितने घर थे उस शहर के अंदर उतनी मटकियां मंगाई। क्या मंगाई? सब नहीं बोल रहे, सब नहीं सुन रहे। मटकियां मंगाई
अब वो मटकियां मंगाई, उसके अंदर 99 अशरफिया डाली। कितने डाली? 99 अशरफिया उसके अंदर डाली, उसके मुंह को पैक किया और उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया 100 अशरफिया। कितनी? हालांकि थी कितनी उसमें? 99। और रात में खामोशी से सबके घरों के सामने ले जाकर रख दिया। अब लोग उठकर जब बाहर निकले तो हर एक के घर के बाहर वो मटकी रखी हुई, 100 अशरफिया लिखे हुए। जब खोल के देखा तो सच्ची में अशरफिया। सबने मटकिया घर में लेकर गए, उसको उल्टा और अशरफिया गिनने लगे तो सबके 99 भरे। कितने भरे? 99। बोले यार लिखा हुआ तो 100 रुपए है इसके ऊपर, यानी 100 लिखा हुआ है और भर रहे 99, तो एक कहां गिर गया? एक कहां गिर गया? तो कोई पलंग के नीचे ढूंढ रहा है, कोई कुर्सी के नीचे ढूंढ रहा है, कोई किचन में ढूंढ रहा है, कोई आंगन में ढूंढ रहा है। सारा गांव बाहर निकल गया घर के, क्योंकि सब में एक कम था। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई कहां ढूंढ रहा है। वजीर बादशाह को लेकर आए, देखो बोले बादशाह सलामत। सब भाग रहे, दौड़े, सब परेशान है। कल जो सुकून से थे आज सब परेशान है। इनको 99 अशरफिया फुकट में मिली, उसकी खुशी नहीं है उनको। एक जो नहीं मिल रही है उसके लिए मारे मारे फिर रहे। सेम हमारी हालत ऐसी है। जैसे अभी हंसे ना इस लतीफे पर, ऐसे अपने आप पर भी हंसना चाहिए। सच में अल्लाह ने कितनी चीजें हमको दिया है, कितनी नेमतें हमको दिया है, लेकिन नाशुक्री। 99 हमारे पास है, लेकिन एक के लिए भटक रहे, एक के लिए भटक रहे, एक के लिए परेशान। वो एक कहां गई? इसीलिए कोई कहता ना कि अपनी जिंदगी पर ज्यादा गम मत करो, अपने आप को ज्यादा मत कोसो। हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे जैसी जिंदगी जीने की कोई दुआ कर रहा कि मुझे यार फलाने की जिंदगी दे दी, और वो खुद अपनी जिंदगी पे रो रहे। अल्लाह की नाशुक्री मत करो। पैसे में कुछ नहीं है, हाँ पैसा कमाओ। मैं तो हर जगह बोलता हूं पैसा भरपूर कमाओ। नौजवानों खास तौर से, जितने भी नौजवान हैं यहां पर, एक मिशन बनाओ कि मुझे लखपति करोड़पति बनना है। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सब लोग आपकी तश्कील करते हैं, 4 महीने जाएंगे, चिल्ले में जाएंगे। मैं आप लोगों की तश्कील करता हूं, नियत करो कि लखपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अरे बोलो ना, इंशाल्लाह भी इतना है ना, लखपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे। पैसा बुरी चीज नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि पैसा बहुत बुरी चीज है, पैसा कमाना है, हर चीज के लिए पैसा लगता है। जो लोग बोलते हैं ना बड़े बड़े आकर कि पैसा कुछ भी नहीं है, सब मोह माया है, वो ये बोलने की भी पैसे लेते हैं। समझ में आया? वो आपको काम पे लगा के जाते हैं। पैसा बुरी चीज नहीं है, पैसे का इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है। पैसे का इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है। देखिए छुरी से सब्जी भी काटी जा सकती है और गला भी। रस्सी से झूला भी बनता है और फांसी का फंदा भी। आपके इस्तेमाल पर है। मस्जिद बनाने के लिए भी पैसे लगते हैं, इमाम रखने के लिए भी पैसे लगते हैं, हर चीज की, मदरसा बनाने के लिए भी पैसे लगते हैं, हर चीज के लिए। अभी आपके बच्चे अंजुमन जा रहे हैं, लग रहे पैसे, फीस देना पड़ती है। फीस माफ भी होंगी तो किताबों के लिए पैसे देना पड़ते होंगे, स्कार्फ के लिए पैसे। कहां पैसे नहीं लगते बताओ? तो पैसा बुरा कैसे हो गया? पैसा बुरा नहीं, बस आपको कोशिश ये करनी है कि हलाल तरीके से कमाना है, हलाल तरीके से कमाना है। किसी का गला रेत कर नहीं कमाना है, किसी पर जुल्म करके नहीं कमाना है, किसी का हक मार के नहीं कमाना है, सूद और ब्याज के धंधे करके नहीं कमाना है। सही तरीके से पैसा कमाओ, जितना आ रहा है आन दो। पैसा आएगा तो लुटाएंगे ना। कितने लोगों ने इनामात दिए बच्चों को? पैसा है तो दिए ना, नहीं रहता तो देते क्या? नहीं, पैसा कमाना है और भरपूर कमाना है, ठीक है ना मौलाना? हाँ, अच्छे से कमाना है, तबीयत से कमाना है। देखो गरीब पैदा होना
یہ تمہاری غلطی نہیں ہے. غریب پیدا ہونا یہ تمہاری غلطی نہیں ہے. غریب مر جانا تمہاری غلطی ہے کہ تم غریب مرے کیسے. تم مالدار کیوں نہیں بنے؟ تم نے کمایا کیوں نہیں؟ تم کو روکا ہے کسی نے کمانے کے لیے، لیکن نہیں کماتے. جس کو کمانا نہیں ہوتا نا وہ کیا بولتا، پیسے میں کچھ نہیں رکھا ہے. اپنے کو کیسا ہے؟ بولے اللہ اللہ کرنے. مرنے کا اپنے کو، ارے مرے گا بھی تو پیسے لگے گا. آج کل مرنے بھی 5-10 ہزار روپے خرچہ آ رہا ہے. مرنے پر بھی، کفن پر بھی ٹیکس لگا ہوا ہے، لکڑی پر بھی ٹیکس لگا ہوا ہے. نہ پیدا ہونا فری ہے نہ مرنا فری ہے. جس چیز کے لیے لگتے ہیں جو پیسے وہ ضروری ہے. پیسہ کماؤ. دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے نا؟ بڑھ رہی کہ نہیں بڑھ رہی؟ ہاں، اس لیے پیسہ بھرپور کماؤ، حلال کی کماؤ. ہاں، بہت مہنگائی بڑھ گئی ہے حد سے زیادہ. مولانا صحیح بات ہے نا؟ بڑی ہی نہیں بڑی. ہاں، امریکہ میں ڈالر، کہاں پر جو ہے روپیہ، اور دبئی میں درہم، اور ہمارا پیسہ درہم برہم. ہمارا پیسہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو پیسہ کماؤ نوجوانوں، آپ لوگ حلال طریقے سے کماؤ. ابھی دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. موبائل پر ہندوستان کی ایک اینالائزنگ رپورٹ آئی. ہر ہندوستانی دن میں 6 گھنٹہ موبائل استعمال کرتا ہے. کتنا؟ 6 گھنٹے. 6 گھنٹہ ایوریج. میں بولتا ہوں مسلمان اگر ہے تو 8 گھنٹہ استعمال کرتا ہوں. کرتے ہی نہیں کرتے؟ ارے کرتے کہ نہیں کرتے بولو؟ 100% کرتے ہیں. یہ میں نے 8، یہ ایوریج ہے. اس سے زیادہ بھی کرتے ہیں مولانا، لیکن 1 روپیہ بھی نہیں کماتے. 1 روپیہ بھی نہیں کماتے. جب تک 2 GB ڈیٹا ختم نہیں کرتے، 2 GB ڈیٹا ختم نہیں کرتے، نیند نہیں آتی. جب تک میسج نہیں آتا نا یور ڈاٹا از ویری لو، جب تک بندے کو نیند ہی نہیں آتی. 1 روپے نہیں کماتے. میں آپ کو بتاؤں، موبائل آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے جو ابھی آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اس پر آپ روزانہ جتنا وقت گزارتے ہیں اتنا وقت اگر آپ صحیح ڈائریکشن میں اگر گزاریں گے، آپ مہینے میں کم سے کم منیمم 1 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. یہ منیمم بتا رہا ہوں. میں یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر ایسے بچے بتا سکتا ہوں 12-13 سال کے، مولانا مہینے کے 20 لاکھ روپے کماتے. 12-13 سال کے، 10ویں بھی نہیں ہوئے ابھی تک، 10ویں بھی نہیں ہوئی، اور 12-13 لاکھ روپے مہینے کا کماتے ہیں. خالی ویڈیو بنا کر نہیں. آپ کو وہ تو مولانا کو ویڈیو بناتے آتے اس لیے. ہاں، بہت سارے لوگ مجھے جو ہے نا ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کتنا کماتے ہیں مولانا. بہت پیسہ آتا ہوگا، ملین میں فالوور ہے تو بہت پیسہ آتا ہوگا، ہے نا؟ ابھی بھی آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جلدی بتائیں گے شاید. میں ہاں یہ بتا دیجیے. عورت سے اس کی عمر اور مرد سے اس کی کمائی نہیں پوچھنا چاہیے. ہاں، بہرحال اتنا ہے کہ میں، کوئی اگر مجھے پوچھتا ہے کہ مولانا آپ مہینے کا کتنا کماتے ہیں، تو میں اس کو بولتا ہوں کہ بھائی میں جب مدرسہ پڑھاتا تھا تو میں جو 3 سال میں کماتا تھا وہ میں 1 مہینے میں کما لیتا ہوں. 1 مہینے میں کما لیتا ہوں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنے نوجوان اتنے موبائل استعمال کریں، صرف آپ یوٹیوب پر جاؤ اور آپ بولو کہ آپ کو آن لائن پیسے کمانے کی ترکیب کیا. حلال طریقے اتنے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. 1 لاکھ روپے منیمم بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ کو کوئی دکان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. انویسٹمنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی بولتے ہیں نا بہت سارا پیسہ آپ کو لگے گا، نہیں. بہت سارے فالوور آپ کو لگیں گے، نہیں. وہ بھی طریقہ نہیں. ہزاروں طریقے آپ. اور جتنے جلدی آپ لوگ آن لائن آ سکتے ہیں آ جاؤ. کل تو آنا ہی ہے آپ کو جھک مار کے. آج ہی آ جاؤ پیار سے. آن لائن پیسے کمانے کے طریقے ابھی سے تلاش کرنا شروع کرو. موبائل میں گیم کھیلنے سے اچھا، اور ویڈیوز دیکھنے سے اچھا، اور ریلز دیکھنے سے اچھا، اور یہ سب کرنے سے اچھا اس سے پیسے کیسے کمانا ہے اس پر توجہ دو. ایک میں مثال دیتا ہوں. صرف ایک ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے. بیٹھنے والے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہوں گے. ایفیلیٹ ایجنٹ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ Amazon, Flipkart,
اور یہ بڑی بڑی جو علی بابا یہ سب کنپنیاں ہیں, इनकी कोई दुकान नहीं है, इनकी सिर्फ वेबसाइट है. क्या है ये समझेंगे ना आप लोग, मैं समझा रहा हूं तो इनकी खाली वेबसाइट है. लोगों ने इनकी वेबसाइट पर अपनी दुकानें खोली हुई है. लोग वहां से ऑर्डर देते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करें ना, वहां से आपको ये माइक चाहिए आपने ले लिया, घड़ी चाहिए आपने ले लिया, है ना, और आपको जो चाहिए आपने ले लिया, और उसका पैसा दुकानदार को भी गया और अमेज़न वाले को भी गया. एक होता है एजेंट, उसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग. उसमें होता यह है कि आपको सिर्फ करना यह होता है कि अमेज़न में एक आपको अकाउंट खोलना है, फॉलोअर वाला नहीं है, खाली एक अकाउंट खोलना है, एसोसिएट अकाउंट होता है, उतना अकाउंट खोलना है और अमेज़न में जाके सर्च करना है अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, उसको लेना है, अपने ग्रुप में शेयर करना है. लिंक, एक लिंक वहां पर जनरेट होती है, वो लिंक वहां से लेना है और सब जगह शेयर कर. जितने व्हाट्सएप पर फालतू फालतू मैसेजेस शेयर करते रहते हैं, है ना, इसके उसके इधर से आएगा उधर से आएगा, कचरा पूरा उड़ा के व्हाट्सएप पे डाल दिया, है ना. पहले होता था ना नेकी कर दरिया में डाल, अभी सब नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल, है ना. हर 2 मिनट के बाद खोल के देखना पड़ता. किसी ने बोला व्हाट्सएप जो है ना मुर्गी के डरबे के जैसे है, बार बार खोल के देखना पड़ता, अंडा दी कि नहीं दी, है ना, बार बार देखना पड़ता है कि क्या आया क्या आया. और फिर व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है कि अपना कचरा उठा के दूसरे में डालो, उसने उड़ाया इसमें डाल दो. एक एक मैसेज दिन भर में 100 बार देखने को मिलता है. ये सब हम करते बैठे बैठे, 1 रुपया नहीं कमाते उसके अंदर. एक अकाउंट बनाओ, एफिलिएट मार्केटिंग करो, वहां से आपको जो है ना प्रोडक्ट तलाश करो और वो उठाओ और लोगों को शेयर करो. रोजाना अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, अपना ये बनाओ और उसको शेयर करना शुरू करो. अगर वीडियो बना सकते तो बहुत अच्छी बात, रेडीमेड वीडियो भी रहते हैं उसके अंदर, वो रेडीमेड वीडियो डाउनलोड करो और अपने सब जगह जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप उसमें शेयर करो. जो भी वो लिंक पर क्लिक करेगा अमेज़न में जाएगा, वहां से जो भी खरीदारी करेगा, सिर्फ तुम्हारी नहीं, जो बताया वो नहीं, जो भी खरीदारी करेगा तुमको कमीशन मिलेगा उसका. समझ में आया, तुमको कमीशन मिलेगा. ऐसे हजारों रास्ते हैं, गूगल से ऐसे कितने रास्ते हैं कि आप वहीं से कॉपी करो, वहीं पर पेस्ट करो, आपको पैसा मिलता है. अभी ऐसी ऐसी वेबसाइट है कि वहां से एक आर्टिकल आपने लिया, उसको वॉइस में कन्वर्ट किया, उसका वीडियो बनाया, डाल दिया, पैसा कमा रहे हैं. बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं और अच्छे तरीके से, ऑनलाइन तरीके से और हलाल तरीके से पैसा कमा रहे हैं. तो नौजवानों को ये मेरी नसीहत है कि मोबाइल में सिर्फ वीडियोस देखने में अपना डेटा वेस्ट मत करो. समझ में आया, अपना डेटा जाया मत करो. डेटा कैसे पैसे कमाना इसके अंदर आप ये करो. मैं मौलवी आदमी हूं, है ना, 7वीं पास हूं मैं, वो भी सिर्फ इम्तिहान को जाता था 2 दिन, है ना. लेकिन जैसे मैं सोशल मीडिया पे आया, मैंने हर चीज सोशल मीडिया से ही सीखी है, हर चीज सोशल मीडिया से सीखी है. और आज मैं कमा भी रहा हूं तो सोशल मीडिया से ही कमा रहा हूं, है ना. और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे बच्चों को मैंने बहुत अच्छी मतलब ये काम पर भी लगाया ऑनलाइन के अंदर कि आप ये काम कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, करना जरूर. ठीक है. अब मैं आप लोगों को ये बात बताने वाला हूं कि आप कोशिश करें कि अपने वक्त को आप जाया नहीं करें. अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी औलाद को पढ़ाओ. दीन दुनिया इसको अलग करके हमने सत्यानाश कर दिया. असल में अपना दीन दुनिया की तालीम जो बोलते हैं ना, दीन की तालीम और दुनिया की तालीम, इसको जो है ना हमने जो अलग कर दिया है, इससे हमारा बहुत सत्यानाश हो गया है. दीन और दुनिया, तालीम तालीम होती है, इल्म इल्म होता है. अब दुनिया की तालीम में क्या आ गया? साइंस, चांद तारे सैयारे कहकशा, ये दुनिया की तालीम हो गई. सारी अल्लाह की कुदरत है, सारी अल्लाह की कुदरत है कि नहीं है, उसको अलग कर दिया. दुनिया और दीन दोनों की इल्म इल्म होता है. आप सिखाएं अपने बच्चों को और आखिर तक पढ़ाएं, आधा अधूरा नहीं. हमारे यहाँ एजुकेशन बोले तो क्या 12वीं, क्या है एजुकेशन? 12वीं पढ़ लिया ना तो बहुत हो गया. 12वीं बोले, 12वीं पास नहीं, आगे तक पहुंचाओ. अभी से नियत करो, बच्चे को वकील बनाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, और साथ साथ दीन की तालीम. साथ साथ क्या की तालीम बोलो? अरे भाई सोएगे जागे, बहुत कम हाथ उड़ रहे, आधे सोए ले. हाँ जागे. साथ में दीन की तालीम,
देखो, दिल में अल्लाह का डर होगा, अल्लाह का खौफ होगा, तो कोई भी फील्ड में जाएगा तो क्या करेगा मालूम? अल्लाह से डर के कमाएगा, हराम की नहीं कमाएगा, हराम की नहीं कमाएगा। मसला यह है कि दुनिया की तालीम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अल्लाह का डर नहीं होता तो वो आगे चल के कसाई बन जाते हैं, चाहे कोई भी फील्ड में जाओ। एक मिसाल लेता हूं मैं आपको। मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ 5 साल पहले, और 1 साल 1.5 साल पहले अम्मी का इंतकाल हुआ। ये 2-5 सालों के अंदर मुझे दवाखाने में बहुत जाने की नौबत आ गई, है ना। तो डॉक्टरों का मसला कैसा हो गया मालूम? खतरनाक। मैं जो अभी बात कर रहा हूं ना, यहाँ के डॉक्टरों के बारे में नहीं है, ये हमारे तरफ के डॉक्टर के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैं डॉक्टरों को दवाखाना जो है ना कमेले के जैसा हो गया है, सब नहीं, अक्सर दवाखाना। कमेले में तो कसाई आपको दिखेगा, उसके हाथ में ऐसा बड़ा सतुरा, खून टपक रहा हुआ है ना, वो नजर आता है क्या ये कसाई है। लेकिन डॉक्टर नहीं, ऐसे मत, वो चेक करने का, इंग्लिश में फर बात करने वाला है ना, इंग्लिश लिखने वाला, लेकिन 1 नंबर का डाकू। ये यहाँ के वास्ते नहीं, यहाँ के डॉक्टर सेम कंडीशन है मौलाना। हाँ, सेम कंडीशन है। जब मत बोलो, मुझे वापस भी जाना। तो सब डॉक्टर ऐसे नहीं होते, लेकिन आप देखिए ना, पहले हकीम होते थे, ऐसे नब्ज पे हाथ लगाते थे। हमारे बुजुर्ग बोलेंगे सही है कि नहीं, नब्ज पर हाथ लगाकर पूरी बीमारी पढ़ लेते थे और आपको दवाई गोली भी दे देते थे। आज डॉक्टर के पास आप जाओ तो आपको पहले तो 5-6 चेकअप दे देता है, और फिर क्या बोलता है, फलाने लैब में ही जाना है, वहां की रिपोर्ट बहुत क्लियर आती है। रिपोर्ट क्लियर नहीं आती, कमीशन क्लियर आता, कमीशन क्लियर आता। अच्छा, इतनी रिपोर्ट आने के बाद भी डॉक्टर के समझ में नहीं आता कि बीमारी क्या है। होता कि मैं दवा तो दे रहा हूं, फर्क पड़ा तो देखो, नहीं तो फिर एमआरआई करना पड़ेगा, सीटी स्कैन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन तो ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई बटन खोलने का काम है, फाड़ना और सीना बटन खोलने का काम है ना। और ऑपरेशन हो जाने के बाद दूसरे डॉक्टर के पास जाओ ना तो बोलता, अरे तुम मेरे पास आए थे ना, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी होती। अरे अल्लाह, ठीक है बात है, ऑपरेशन हो गया, फट गया, सी लिया, है ना। और फिर ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। अभी हमारे एक उनका इलाज कराए हमने, ऑपरेशन कराए, हमारी बहन का कमर का ऑपरेशन कराए। अब वो पहले तो भी ठीक थी, अब ऑपरेशन के बाद माजूर हो गई। अब जितने भी डॉक्टर के पास जाते हैं बोलते ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी तुम्हारे को, बगैर ऑपरेशन के काम हो गया होता। अब जिसके पास कराए वो भी तो डॉक्टर है ना, उसने भी तो वाट लगा दिया ना, पैसे भी ले लिया, 1.5-2 लाख रुपए, और आदू कर दिया। क्या कर दिया? आदू कर दिया। एक आदमी को फिट आ गया, वो फिट आके गिर गया, उसको जल्दी से उठा के सरकारी दवाखाने में लेके चले गए। उसके कपड़े उतारे जैसे ऑपरेशन करने के वास्ते, ऑपरेशन को जल्दी कर देना, बिल आता ना ऊपर से, तो ऑपरेशन करने के लिए जब उसको खमीस निकाले उसका, तो उसका एक यहाँ उसने चिपकाया हुआ था कागज। बोले डॉक्टर साहब मेरे हार्ट का ऑपरेशन भी हो गया। वो कागज निकाले तो उसके नीचे दूसरा कागज था, मेरे लीवर का भी ऑपरेशन हो गया। फिर एक कागज निकाले, तीसरा कागज, मेरी किडनी का भी ऑपरेशन हो गया। चौथे कागज पे लिखा हुआ था, डॉक्टर साहब मुझे फिट की बीमारी है, थोड़ी देर में अच्छा हो जाऊंगा, प्लीज मेरा ऑपरेशन मत करो। समझे? हाँ, अभी डॉक्टर जो चिट्ठी लिख के देता है ना, चिट्ठी लिख के देता है ना, वो किसको समझती? मेडिकल वाले को समझती, अपने को समझती नहीं हो। एक को पूछा किसी ने, बोले क्या लिख के देता डॉक्टर? तो बोले डॉक्टर ये लिख के देता मेडिकल वाले को कि मैंने लूट लिया, अभी तू लूट। ऐसा हाल हो गया। एक मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ। एक चाचा थे, अब वो चाचा जो है ना, क्या हो गया, उनकी टांग नीली पड़ गई। क्या पड़ गई? टांग नीली होने लगी। गए डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने चेक करा, बोले चाचा पाँव में जहर, पॉइजन हो गया। बोले अरे वो डॉक्टर साहब अभी क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर साहब बोले कि ये बढ़ रहा है। बोले क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है।
اور اگر یہ پورے بدن میں پھیل گیا تو جان بھی جا سکتی ہے. سمجھے نا, جان بھی جا سکتی ہے. آج کل جتنے ڈاکٹر لوگ جان کی دھمکی دیتے نا, بھائی لوگ ہی نہیں دیتے. بھائی ذرا سی بات پہ اگر بڑھ گیا نا, اگر یہ ہو گیا نا, آپریشن نہیں کیے نا, یعنی بات میں گئے تم قبرستان نہیں بتاتے. حد ہو گئی یار, پریشان ہو گئے. کچھ بھی کرو, ڈاکٹر نے جو بولا وہ کرنا چاہیے. پہلے جو نا ڈاکٹر لوگ, حکیم لوگ تسلی دیتے تھے, ارے آپ ٹینشن مت لو, ہو جائے گا, بے فکر رہو, اتنی دوائی کھاؤ, ہو جائے گا. ڈاکٹر کے پاس جا کے نا آدھی بیماری تو ایسی اچھی ہو جاتی تھی. سچی بتاؤ ایمانداری سے, ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد پہلے کے ڈاکٹر, پہلے کے حکیم جاتے ہی آدمی آدھے سے زیادہ اچھا ہو جاتا تھا. گولی تو بعد میں کھاتا تھا. اور آج ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد آدمی ڈرتا ہے, پتہ نہیں کیا بول دیں گے, پتہ نہیں کیا بول دیں گے, پتہ نہیں کیا بول دیں گے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو. صحیح بات ہے کہ نہیں صحیح بات ہے؟ ارے سہمت ہے تو ہاتھ اٹھاؤ. چاچا بولے ٹانگ جو ہے زہر پھیل گیا, تم کو ٹانگ کاٹنی پڑے گی نہیں تو جان جائے گی. اب چاچا بیچارے ابھی مرتے کیا نہ کرتے, بولے ابھی جان جائیں گے اس سے اچھا ہے کہ کاٹ دو. تو بولے کاٹے گے, چلوں گا ویسے میں, تو بولے لکڑی کی نکلی ٹانگ لگانی پڑی. بولے چلو ٹھیک ہے, ٹانگ کاٹ دیے, لکڑی کی ٹانگ لگا دیے. کچھ دن کے بعد دوسری ٹانگ بھی نیلی پڑنے لگ گئی, دوسری ٹانگ بھی نیلی پڑنے لگ گئی. پھر بھاگتے ہوئے آئے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر صاحب تم نے بولے تھے کہ یہ کاٹ دیں گے تو زہر نہیں پھیلے گا, یہ تو ادھر بھی پھیل جائے گی, ٹانگ بھی نیلی پڑ گئی. ڈاکٹر نے دیکھا, ٹینشن میں آ گیا, بولے ابھی کیا کریں گے, زہر ہے, پھیل گیا. بولے تو ابھی کیا کرنا پڑے گا؟ بولے یہ ٹانگ بھی کاٹنی پڑی. ارے بولے ڈاکٹر چلوں گا کیسے؟ بولے یہ بھی لکڑی کی ٹانگ لگانی پڑی, نکلی ٹانگ لگانی پڑی, نہیں تو جان جائیں گے. تو بولے مرتا کیا نہ کرتا, کوئی بات نہیں. بولے دوسری ٹانگ لگا. دونوں چچا کی ٹانگیں کاٹ کے لکڑی کی ٹانگیں لگا دی. چلے گئے چاچا. 1 مہینے کے بعد وہ لکڑی کی ٹانگ بھی نیلی پڑنے لگ گئی. اب چاچا ٹینشن میں آ گئے, یہ کیا بات ہو گئی, لکڑی کی نکلی ٹانگ بھی نیلی پڑ رہی ہے. بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس آئے, بولے ڈاکٹر صاحب یہ تو ٹانگیں لکڑی کی ہے, وہ بھی نیلی پڑ رہی ہے. ڈاکٹر بھی ٹینشن میں آ گیا, بولے یہ کیا بات ہو گئی. غور سے چیک کرا, دوربین لگایا, یہ لگایا, پتہ نہیں کیا کیا لگایا, سر کو ہاتھ لگا کے بیٹھا. بولے چاچا معاف کرنا, تمہاری لنگی کلر چھوڑ رہی. بولے ارے بولے پر میرے دونوں ٹانگ چلی گئی نا, دونوں پیر سے تو معذور کر دیا بولے مجھے. ہاں یہ کیا بات ہو گئی. ہاں تو ایسے بھی آج کل کے بھائی, اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے معلوم کیا, اس سے ہوتا یہ کہ دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے, اللہ کے پاس حساب دینے کا خوف نہیں ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں, دین کی تعلیم نہیں ہے. ڈاکٹر بن کے بھی کسائی بن گیا, انجینئر بن کے بھی کسائی بن گیا, ہے نا, سائنسداں بن کے بھی کسائی بن گیا. آج دیکھیے پڑھے لکھوں نے مل کر ہتھیار کون بناتا ہے؟ پڑھے لکھے کون بناتا ہے بولو؟ جاہل. جاہل تو بیچارہ ہل بناتا ہے, جاہل بیچارہ کھیت میں پھل اگاتا ہے, لیکن پڑھے لکھے, سب پڑھے لکھوں نے مل کر اتنے ہتھیار بنا لیے کہ پوری دنیا کو 7 بار ختم کیا جا سکتا ہے. 7 ٹائم. کتنی؟ 7 بار ختم, پوری ملیا میٹ ہو سکتی ہے دنیا 7 بار. کتنے ہتھیار بنا لیے پڑھے لکھوں نے مل کر. اللہ کا ڈر نہیں, اللہ کا ڈر. اس لیے دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم یہ دونوں ایک ہی ہے, اور دونوں پڑھانا ہے. دین کی تعلیم ضروری, دنیا کی تعلیم بھی ضروری. اب دیکھو ہم لڑکیوں کو پڑھاتے نہیں, لڑکیوں کو پڑھاتے نہیں, کیا بولتے ہیں, اور بعد میں جب ڈیلیوری کی ٹائم آتا تو لیڈیز ڈاکٹر ڈھونڈتے. لیڈیز ڈاکٹر ڈھونڈتے کہ نہیں ڈھونڈتے؟ بولے لیڈیز ڈاکٹر مانگتا گھر والی کی ڈیلیوری. اور تمہاری بیٹی کو بنانا, نہیں بیٹی کو نہیں بنا سکتے. بیٹیوں کو ڈی موٹیویٹ مت کرو. حالانکہ یہ پتہ نہیں آپ لوگ کس طرح سے اس بات کو لیں گے, لیکن میں ہر جگہ کہتا ہوں, مولانا معاف کرنا اگر آپ لوگوں کے مزاج کے خلاف ہے. بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ اور پورا پڑھاؤ, دنیا کی تعلیم آگے تک پڑھاؤ. صرف آپ کو اتنا پردے کے اہتمام کے ساتھ, نگرانی کے ساتھ. ہمارے دادی کہا کرتی تھی کہ بچوں کو سونے کا نوالا کھلاؤ, لیکن گفٹ کی نظر رکھو.
है ना। लड़कियां सबसे ज्यादा टॉप कर रही है आजकल, और हम क्या करते हैं, जिनको पढ़ना नहीं है लड़कों को ढकेल रहे जाते, उनको ढकेल रहे। अरे लड़कियां होशियार है, सीरियस है, बहुत अच्छा पढ़ती है। लड़कियां देखो हर जगह उन्होंने टॉप कर रही है लड़कियां, चाहे जॉब में सीरियस जॉब कर रही है, IAS IPS सीरियसली आगे बढ़ रही है। आप स्कूलों का देखो, स्कोर देख लो आप, लड़कियां सबसे ज्यादा, और हम लोग लड़कियों को पीछे खींच रहे हैं। अरे लड़कियां हैं, पीछे खींच कर जमीयत उलमा की रिपोर्ट है 8 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई है। 8 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई। बराबर है कि नहीं बराबर है? ये जाहिल रखने की वजह से, अकीदे कमजोर होने की वजह से। इसलिए लड़कियों को पढ़ाओ, खास करके लड़कियों को पढ़ाओ। देखो लड़कियां कैसे आगे बढ़ती है। ये जो बैठी है ना, इसमें कई डॉक्टर है, कई इंजीनियर है, इनके अंदर सलाहियत है ना। लड़कियों को इतना मजबूत बनाओ। मैं भी औरतों की तरफ आ रहा हूं, मर्दों को मैंने बोल दिया जो बोलना है। हमारी माँ बहनें भी बैठी है। लड़कियों को इतना पढ़ाओ, इतना आगे बढ़ाओ, इतना मजबूत बनाओ कि अपने पैरों पर खड़ी हो सके। कल को कोई जालिम आदमी इसको मजबूर न कर दे, इसको तलाक देकर, इसको डाइवर्स देकर इसके हाथ पैर न काट दे। अगर कल को लड़की की तलाक हो भी जाती है बदकिस्मती से, तो अपने पैरों पर खड़ी रह सके, अपना खुद वो कमा सके। उसके पास इतनी सलाहियत, इतना हुनर होना चाहिए। आप देखिए, जब लड़की को तलाक हो जाती है तो माँ बाप तो बेचारे संभाल लेते हैं, वो बूढ़े होते हैं, चंद दिन में वो खत्म हो जाते हैं। भाई नहीं संभालते, भाभियां नहीं संभालती। समझ में आया? अगर संभाल भी लेती है तो दिन रात ताने देती है। भाई दिन रात ताने देता है। पहले एक कमाता था, 10 को बिठा के खिलाता था। आज 10 के 10 कमा रहे हैं, लेकिन एक मुतल्लका बहन संभाल नहीं सकते, एक बूढ़े माँ बाप को संभाल नहीं सकते। इतना बुरा हाल हो गया है। खास तौर से लड़कियों को इसलिए पढ़ाना है कि वो मजबूत बने, खुद कमाने वाली बने, जॉब करने वाली बने, हुनरबाज बने, कि वो कल को अगर उसके साथ कोई हादसा होता है तो वो, अच्छा सिर्फ हादसे के लिए नहीं पढ़ाना है। अगर वो कहीं जाती भी है तो अपने मर्द का हाथ भी बटा सके। कितनी औरतें ऐसी है जो जॉब भी करती है और घर का काम भी करती है। ये भी है, उसकी चॉइस पे रखो, उसको करना है करेगी, नहीं करना है नहीं करेगी। लेकिन लड़कियों को आदू बना के मत रखो, उनको पढ़ाओ, पर्दे के एहतमाम के साथ उनको पढ़ाओ। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। आप लोगों को मालूम है, देखो पुलिस स्टेशन जाएंगे जब मालूम पड़ता है कि कितने क्राइम हो रहे तुम्हारे गांव। ऐसे तो सब अच्छा लगता है, ऐसे सब अच्छा लगता है, लेकिन पुलिस स्टेशन में जाएंगे ना और दिन भर बैठेंगे मालूम पड़ेगा कितने क्राइम हो रहे हैं। हमारे पास फैमिली मैटर्स आते हैं, हमको मालूम है घरों का क्या हाल हो चुका है, रिश्ते कितने, यानी इतना बुरा हाल है ना कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। तो करेंगे भाई सब। एक तो पढ़ाई पर ध्यान देना है, बच्चों के, लड़के और लड़कियों के, नौजवानों कमाने पर ध्यान देना है। देखो दीन की बातें ये सब बताते हैं आपको, नमाज पढ़ना है, रोजे रखना है, रमजान आ रहा है, शबे बरात, शबे कदर, ये सब बहुत उलमाए किराम आपको हर जुम्मा को समझाते हैं। मैं थोड़ा सा अलग आपको समझा के जा रहा हूं, है ना। नहीं तो मोड़ा बोलेंगे, मोड़ा आए थे नमाज की तो बात तक नहीं निकाले, रोजे का तस्करा तक नहीं करे, रमजान का नाम तक नहीं निकाले। भाई ये सब सुनते रहते हैं आप माशाल्लाह, है ना। मैं कुछ वो बातें आपके सामने करके जा रहा हूं जो आपको कम सुनने को मिलती है। कितने लोगों ने आपको बोल के कि पैसा कमाओ करके? कोई नहीं बोलता पैसा कमाओ, बल्कि ये बोलता है कि पैसे के पीछे मत भागो। मैं बोलता हूं पैसे के पीछे भागो, पैसा कमाओ, बस खाली हलाल तरीके से कमाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कमजोर मोमिन से ताकतवर मोमिन ज्यादा बेहतर है, नीचे के हाथ से ऊपर का हाथ ज्यादा बेहतर है। हमको लोग क्या बोलते हैं मालूम? अब्दुल पंचर वाला, है ना, ये नाम रखे हुए हमारे। मुसलमानों के इलाके देखो कहां है, नाले के किनारे, गांव के किनारे, यहां की नहीं बात कर रहा हूं, कहीं भी चले जाओ आप,
झोपड़पट्टी इलाका, छोटे छोटे रोड, गंदगी, कचरों के ढेर। अगर हमारे पास पैसा होता तो ऐसी सोसाइटियों में और ऐसी जगह पर रहते नहीं रहते। इसलिए अगर कोई 25 साल का, 30 साल का, 40 साल का हो गया है और वो गरीब है तो उसकी अपनी गलती है, उसकी अपनी गलती है। ठीक है, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। साथ साथ मैं बोल भी देता हूं, भाई नमाजों का भी एहतमाम करो। रमजान आ रहे हैं, रोजे भी रखो। उलमाए दीन है, उनकी कदर करो। समझ में आया? ये उलमा है, देखो ये मुफ्ती साहब जलसा किए, कितनी मेहनत की इनको ही मालूम है ना? उनकी शक्ल से उनकी थकान नजर आ रही है। बेचारे महीने भर से मेहनत कर रहे होंगे, जबकि ये बच्चे तैयार बैठे। कितनी गालियां खानी पड़ती है, मकतब हम चलाते हैं, हमको पता है ना? आप ही लोगों के बच्चे हम पढ़ा रहे हैं। पहले ना ऐसा होता था ना, वाकई में जब हम लोग पढ़ते थे और ये सब पढ़ते होंगे, उस्ताद लोग बहुत मारते थे बच्चों को। मारते थे ना, मारते थे, सबने मार गए। और हमारे अब्बा तो ऐसे थे कि उस्ताद जितना मारता था उससे ज्यादा हमारे अब्बा मारते थे। अगर हमने उस्ताद की शिकायत लेकर गए ना तो वो अलग से बोनस में मिलता था। वो जो मार था वो बोनस में मिलता था कि तूने उस्ताद की शिकायत लेकर आया। और आजकल बच्चे तो इतने नाजुक हो गए, इतने नाजुक हो गए कि जमीन पे मारो तो इनको बदन पे वला है ना? तो ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और मेरे नौजवानों से मैंने कहना चाहूंगा एक खास बात, पुड़िया बहुत खा रहे हैं, पुड़िया, गुटके, है ना? गुटके। कितने नौजवान ऐसे हैं 300-400 कमाते हैं, 200-250 की पुड़ी खाते हैं, 200-250 की पुड़ी खा जाते हैं और बातें बड़ी बड़ी ऐसे मुंह में पुड़ी डाल दे। और अमेरिका ने ऐसा कर दिया, अमेरिका ने ऐसा कर दिया, है ना? मोदी ने ऐसा कर दिया। तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? उसने जो करा करा, तू क्या कर रहा है? और बड़े बड़े वीडियो देख। अच्छा, गुटके खा रहे, गुटके मुंह में, रात रात भर गुटके। कैंसर की बीमारियां हो रही है, कैंसर की बीमारी। और स्टेटस, नौजवानों की स्टेटस देखो तो डर लगता। अरे एक नौजवान का स्टेटस क्या था मालूम? हम वहां खड़े होते हैं जब मैटर बड़े होते। और एक दिन पुलिस ने उसको मारा था पकड़। हम ये है, हम वो है। स्टेटस देखेंगे तो ऐसा लगता पता नहीं ये किंग या मुगल अभी तक जिंदा है। और शादियों में गाने, अज़ीमुश्शान शहंशाह, फरमा रवा है, एक दिन का शहंशाह। 8 दिन के बाद वो दूल्हे की हालत देखो, लुंगी पकड़ के दूध की थैली लेके आते। अरे यार, ये 8 दिन पहले अज़ीमुश्शान शहंशाह, औरत बराबर काम पे लगा दे। बड़े बड़े नवाबों की शेरवानियां उतार देती है औरतें। बहुत होशियार है, मारने वाले की जो है ना गर्दन डाल देते हैं, है ना? औरतों की भी इज्जत करो भाई। देखो, औरतों के ताल्लुक से मैं आपको एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। औरतों को मोहब्बत कम करो चलेगा, ये औरतों की दिल की बात बोल रहा हूं। औरतों से मोहब्बत कम करो चलेगा, लेकिन उनकी इज्जत करो। उनकी क्या करो? इज्जत। हमारा क्या मालूम क्या, हम औरतों को जलील करना अपनी मर्दानगी समझते। क्या समझते हैं? माँ बाप के सामने डांट देना, ए चल 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 पुट, या कान के पीछे लगा दिया, ये लेके आ, वो लेके आ, ऐसा कर। मेहमान आ गए तो इसको और ज्यादा ताव आता, इसको और ताव आता। ए लाई क्या, चल जल्दी से ला, चाय ला, वो बना, ये बना। और फिर मेहमान के सामने ऐसा बैठता, 100 रुपए रोज कमाता और रुआ में 1 लाख रुपए का करता। अच्छा, खाली औरत पे चलती इसकी, सिर्फ औरत पे चलती, बाकी कोई पूछता नहीं इसको। गली के कुत्तों ने भी भूखना बंद कर दिया उसको। लेकिन यहाँ रुआ, याद रखे, इज्जत करना सीखे। इज्जत वही देता है जिसके पास इज्जत होती है। एक बहुत अच्छी बात आपको कहता हूं, जहां मोहब्बत हो और इज्जत ना हो, वहां मोहब्बत खत्म हो जाती है।
اور جہاں محبت نہ ہو اور عزت ہو وہاں پر محبت ہو ہی جاتی ہے. اس لیے عزت کرنا سیکھیں. عزت کریں گے نا آپ کا سپورٹ کرے گی. ورنہ یاد رکھو ستا خالی باہر نہیں پلٹتی, ستا گھر میں بھی پلٹتی ہے. ہاں ستا گھر میں بھی پلٹتی ہے. آج بی جے پی ہے, کل کانگریس جائیں گے, بی جے پی آ جائیں گی. آج تم کو لگتا ہے نا آج تمہاری حکومت ہے. یاد رکھو اگر تم کو بڑھاپا اچھا گزارنا ہے اور تم کو لگتا ہے کہ تمہاری بڈھی تمہاری خدمت کرے, جوانی میں عزت کرو ان کی, ان کو گھمانے پھرانے لے کے جاؤ. جو بڈھی بڈھے کو چلا رہی, سمجھ جانے کے بڈھے نے بہت ظلم کرے. ایک بڈھی ہمارے گاؤں میں تھی, وہ بڈھے کو گھر میں نہیں آتی تھی. گھر میں آیا بڈھا بیچارہ, تھوڑا کھانا کھایا گیا, چل مسجد, چل مسجد, سیدھا مسجد. اس کو مسجد میں بھیجتے تھے, نہیں تو جماعت میں. اگر بڑھاپا اچھا گزارنا ہے تو جوانی میں عورت کے ساتھ اچھی رہو. سب چھوڑ کے چلے جائیں گے تمہارے, سب چھوڑ کے چلے جائیں گے, لیکن تمہارا ٹوائلٹ باتھ روم صاف کرنے والی تمہاری بیوی ہوگی. جوانی میں اچھا رہو. اور یاد رکھو آٹا گوندنا, برتن دھونا اور اس کو سپورٹ کرنا وہ جورو کا غلام نہیں ہوتا. عورت کی عزت کرنے والا جورو کا غلام نہیں ہوتا, بلکہ وہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس کی تربیت ایک اچھی ماں نے, ایک اچھی عورت نے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جورو کے غلام تھے. آٹا گوند کے دیتے تھے, برتن دھوتے تھے, ہاتھ بٹاتے تھے, اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھیلتے تھے. تو نعوذ باللہ کے جورو کے غلام تھے. ہم تو ایک کام کبھی عورت بول دے کبھی تو ہے ایسے یہ ایسے بہت ہوتے, اور باہر ایسے گھومیں گے, اور گھر میں ایسے. کیا کریں گے؟ اچھے رہو, سپورٹ کریں گے. کتنے غلط کاموں میں بھی عورتیں ساتھ دے دیتی ہے اگر مرد اچھا رہا. ورنہ ٹائم پڑا نا کبھی, ایک بار کبھی عزت نکالنے پر اگر عورت آ گئی نا, ہاں مرد منہ چھپانے کے لائق, منہ بتانے کے لائق نہیں رہتا. سمجھ میں آیا؟ میں عورتوں کو اکسا نہیں رہا ہوں. لوگ بولیں گے مولانا آ کے اکسا کے چلیں گے. ایک بات بتا رہا ہوں, اور یہ حقیقت ہے, غلط بات نہیں ہے, غلط بات نہیں ہے, یہ صحیح بات ہے. ایک لطیفہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک مہمان, ایک کنجوس تھا, ایک آدمی. ہونا ہو گیا نا ٹائم بھائی, سننے میں 5 منٹ اور, 1 گھنٹہ. ہاں ایک کنجوس آدمی تھا. ایک کنجوس آدمی تھا, اس کے وہاں مہمان آ گئے. اب یہ ٹینشن میں آ گیا, یہ کیا ہو گیا, ٹینشن میں آ گیا. مہمان آنے والے تھے اور مہمان آ گئے, اچانک مہمان آ گئے. اب دونوں میاں بیوی مشورہ, یار بولے مہمان آ گئے. کنجوس آدمی تو کتنا خطرناک ہوتا ہے, کنجوس مکھی چوس بولتے ہیں نا. ہاں کنجوسی کبھی نہیں. مسلمان بخیل نہیں ہوتا, ایمان والا بخیل نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں ایک چیز رہ سکتی ہے, ایک ایمان یا پھر بخل یعنی کنجوسی. ایک تو کنجوسی رہے گی, نہیں تو ایمان رہے گا. ایمان رہے گا تو کنجوسی نہیں رہے گی, ہے نا. کنجوس نہیں بننا. اور پیسے آنے کا سب سے اچھا راستہ پیسے خرچہ کرنا ہے. پیسے جائیں گے تو آئیں گے, پیسے جائیں گے تو آئیں گے. ہم کیا لگتا ہے پیسے آؤ سنبھال کے رکھو, خرچہ نہ کرو. نہیں, بے برکتی. خرچ کرو, پیسہ آئے گا. زکات نکالو, صدقہ دو, لوگوں کی مدد کرو, پیسہ بھرپور آتا ہے آپ کے پاس. دیکھنا پیسہ آنے کی سب سے بڑا گن کہ آپ خرچہ کرنے والے بنے. خرچہ کرنے والوں کو دیکھو کبھی رستے پہ نہیں آیا. جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے, جو صدقہ خیرات زکات نکالتا ہے, ایک بندہ ایسا بتا دو جو راستے پہ آ گیا. آیا کوئی؟ ارے کوئی آیا کیا؟ کبھی راستے پہ نہیں آتا, بلکہ اللہ اس کو نوازتا ہے, اس کو نوازتا ہے. ابھی کنجوس تھا, یہ آ گئے مہمان,
मेहमान आ गए तो दोनों मियाँ बीवी मशवरा करने लगे, बोले यार अभी तो ये आ गए, अभी खर्चा कहाँ से करने का, पैसे नहीं, पानी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और इनको कहाँ से अभी मुर्गी खिलाने की, मच्छी खिलाने की। तो औरत ने मशवरा दी, देखो औरत से मोहब्बत करो ना तो आइडिया भी औरत ही दी थी। हाँ, बहुत भारी भारी आइडिया दी थी। औरत ने बोली देखो एक काम करती, मैं फिक्की दाल बनाती हूँ। क्या बनाती? अरे बोलो, फिक्की दाल बनाती। बोले तुमने क्या करना, वहां बैठना मेहमान के सामने और मुझे जोर से आवाज लगाना कि बिरयानी ला, तो मैं एक भगोना जोर से पटक दूंगी। फिर तुम मुझे क्या हुआ तो बोलने का बिरयानी गिर गई। फिर मैं बोलूंगा, फिर तुमने बोलना कि मच्छी ला, फिर मैं एक भगोना हो गिरा दूंगी। फिर तुमने पूछना कि क्या हुआ तो बोले मच्छी गिर गई। अरे तो अब क्या बचा, तुम्हें बोलेंगे फिक्की दाल बची, तो मैं लेके आ जाऊंगी, मेहमान भी बुरा नहीं मानेंगे, टेंशन इतनी। मेहमान को लगेगा मच्छी बिरयानी बनाए थे, अपना काम हो गया, सब वेल सेट, टेंशन नहीं, है ना। अब आए मेहमान खाने के लिए बैठे, प्लान पूरा, औरत बिल्कुल तैयार एकदम प्लान के तहत खाने के बैठे, आवाज लगा ए बोले चल जल्दी से बिरयानी ला। तो उसने एक भगोना धार 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 धार, औरतें बहुत उचारे थे। कभी भी याद रखो, किसी की दावत में जाओ ना और खाना खाओ और अगर खरड़ने की आवाज आ गई ना तुम्हारे तो समझ जाने का कि खाना खत्म हो रहा। क्या हो रहा? हाँ, खाना खत्म हो रहा है। तो और मंगा रहे अंदर से बर्तन की आवाज आने लगी, ये इशारा रहता औरत का खाना खत्म हो गया। लेकिन कुछ लोग इशारों को समझते ही नहीं, मंगाते ही रहते, तो बेचारे को और बनाना पड़ता है ना। और कभी कोई बच्चा किचन में से आया और अब्बा को बुलाया कि अम्मी बुला रही, तो भी समझ जाने का खाना खत्म हो रहा। क्या हो रहा? हाँ, या फिर अब्बा को अंदर बुलाई तो वहां उसको इंजेक्शन मिला, कुछ तो भी करो, इनको कटाओ, बहुत खा लिया इन्होंने, दुआ नहीं पड़े थे, शैतान साथ में खा रहा था, अब इतना खाना नहीं। तो औरत के अलग अलग इशारे रहते हैं, अलग अलग इशारे रहते हैं। तो अब मेहमान बैठ गए खाना खाने के लिए, इसने आवाज लगाया अरे बिरयानी ला, तो उसने एक भगोना जोर से पटक दी, धार धार। अरे क्या हुआ? बोले अजी वो बिरयानी गिर गई। अरे तू पागल है क्या, तू समझता नहीं कि तुझे 100 रुपए किलो के चावल लाया था मैंने, खास मेरे मेहमान इतने करीब, दिल के करीब, मेरे जिगर गोशे, हाँ, उनके वास्ते 100 रुपए का मैंने चावल लाया, गोश्त इतना महंगा लाया। चल अच्छा एक काम कर, मच्छी ला, मच्छी तो ला। तो फिर वो थोड़ी देर बाद और एक भगोने का आवाज है, धार धार धार। अरे अभी क्या हुआ? तो बोले वो मच्छी भी गिर गई, बोले मेरे हाथ से स्लिप हो गई। अरे अल्लाह, मैंने 500 रुपए किलो की मच्छी लाया था खास मेरे मेहमान के वास्ते। तो बोले अभी क्या बचा? तो बोले दाल बची। बोले लेके आ। बोले चल। उतने में तीसरी बार और भगोने की आवाज आई। अरे बोले अब क्या हुआ? बोले दाल गिर गई, जो दाल बनाई थी असल वो गिर गई। बोले अभी तो प्लान में नहीं था, ये आउट ऑफ प्लान हो गया, उम्मीद से बढ़ के। अब उसको बहुत गुस्सा आ गया, अब दालेज गिर गई। उसने औरत को मारना शुरू करा, औरत को मारना शुरू करा, जो लिला लिला के उसको मारा। मेहमान ने देखा बाबा ये मियां बीवी के झगड़े शुरू हो गए, वो भाग गए, मेहमान भाग गए, चले गए। फिर बाद में शौहर क्या करा, उसके बीवी बोला चुप बैठ। बोले मैं चुप चुप मार रहा था। औरत भी आंसू पोंछते पोंछते बोली मैं भी चुप चुप रो रही थी। मेहमान वापिस आ गए, हम भी चुप चुप गए थे। यार अंधे हो गए यार। क्या ये बात है भाई? औरतों की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, समझ में आया? हाँ, ये बहुत नाजुक होती है, ये बहुत नाजुक भी होती है, लेकिन वक्त पड़ा तो बहुत डेंजर भी बन जाती है ना। इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, सबको संभाल के लो। और
अभी रमजान आ रहा है, तैयारी अभी से करो, शाबान में रोजे रखो, रमजान को अच्छे से गुजारो, अल्लाह से माफी मांगो, तौबा करो, अल्लाह ताला सब माफ करने वाले हैं, है ना। और जब भी नमाज पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो और अल्लाह से रो रो कर मांगना। हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं अल्लाह ताला को, दुआ नहीं मांगते। देखो दुनिया वालों को अगर तकलीफें सुनाना 2 घंटे कम पड़ जाते, दुनिया वालों को तकलीफें अगर सुनाना 2 घंटे कम पड़ जाते, और अल्लाह को अगर तकलीफें सुनाना है तो 2-3 मिनट में सुना देते। 1 मिनट हमारा सजदे में सर नहीं टिकता, इसलिए अल्लाह से खूब मांगते रहो। मांगेंगे सब इंशाअल्लाह। चलो आखिर में 4 लाइन कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरा क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरा क्या हुआ सदियां गुजर गई, इंसान जो तुझे बना दे वो सजदा तलाश। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।